नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपका अपना कार्यक्रम लेकर डॉक्टर स्पीक। और अगले आधे घंटे में आप कोविड-19 से जुड़े कोई भी सवाल आपके जहन में हो पूछ सकते हैं, कोई भी शंका हो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है या कोई भी कन्फ्यूजन हो उसका समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है। आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर कॉल करना है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक लाइव से भी हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है और मेरे साथ अंग्रेजी में रहेंगी मेरी सहयोगी सकल भट्ट। Hi Rama, and in the next half an hour, viewers, like Rama just mentioned, you are free to call us. We are flashing our numbers right on your screens. You can also flash your questions via social media platforms like Twitter and Facebook. And we're going to get our doctors on board, speak to you directly. In fact, I'm also told that Dr. Ashutosh Biswas from Department of Medicine from AIIMS has already joining us on this edition of Dr. Speak. Dr. Biswas, thank you so much for joining us on this edition of Dr. Speak. Yes, he's there with us. I'm going to quickly, in fact, first of all, ask you the question that perhaps the nation would also want to ask you, because now all eyes are set on the phase 3 trials of the Covaxin. And is this another round of good news in store for lots of Indians back home? Because this is also seen as a massive boost to India's indigenous vaccine plan, Doctor. Dr. Biswas? Dr. Biswas, can you hear us? Rama, we will try and reconnect with Dr. Biswas. Meanwhile, we have some news on that Covaxin big story. बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण खबर है। भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मिल गई है और फेज 3 का ट्रायल नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। देश के 19 जगहों पर 22,000 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया जाएगा। ये स्वदेशी वैक्सीन की दिशा में बड़ा कदम है। इस उपलब्धि से कोविड के वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी से जुलाई के बीच 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने सभी राज्यों से वैक्सीन देने वालों की लिस्ट मांगी है। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन को राज्यों तक और दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। वैक्सीन पर बनी विशेषज्ञों की टीम लगातार राज्यों से भी संपर्क में है। भारत दुनिया भर में 60% से ज्यादा वैक्सीन का निर्यात करता है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है, तो बेहद अहम खबर है। तो डॉक्टर आशुतोष सकल फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। Yes, Dr. Ashutosh Biswas, I was trying to ask you, sir, thank you for joining us. This is again seen as a big boost as far as our own indigenous vaccine plan is concerned. But when we talk about the phase 3 trials, in fact, the numbers are really looking good. We're looking at around 22,000 people across 19 places. So, as and when the recovery rate is already going up in charts, the numbers are looking favorable there as well. We are much, much ahead of the curve. Where do we actually stand when it comes to the vaccine? That's the big question. Yes, the most important thing that, the indigenous vaccine, this is our co-vaccine, is a very good thing that this vaccine is developed in our country with our strain, that coronavirus strain, that is the people are infected with this strain, and the vaccine developed against this is a very good thing. And we are expecting that more than 22,000 people are already trial already. We have the result. So with this, we are thinking that would be the best vaccine for Indian population, and we are eagerly waiting for that. And I think very soon it will be launched. And the question is that now in which phase, and who will be the first person, who are the groups that going to be vaccinated, whether the COVID warriors, they are to be protected first, or maybe people do some groups of people. No, we have to decide instead of going for a totally generalized vaccine availability. So we have to see whether the old people or some high risk group people to be vaccinated. But that's a very crucial point, sir. How do you really profile the people on the priority basis? If you could just give us an idea, is this going to be on asymptomatic or symptomatic basis, or will this be done on random basis? There has to be a certain SOP, a proper system to go about it, isn't it? Yeah, vaccine is most of the time, we
there are many things to look into the vaccine. Number one, to prevent the infection at all. The virus cannot really multiply in an individual after vaccination. That is one. So the person will never ever suffer from this disease. Number two, vaccine may prevent for severity of the progression of the disease. Somebody has taken vaccine. Now he or she will not go for severity. That is one kind of the protection of the vaccine. And another way of measuring the people will not, the death mortality will be less. So that there are many ways to assess this vaccine. So in this also, it has been tested how many people will be prevented, how many people will be really hold the progression of the disease, and then reduce the mortality. So these are the three ways basically we measure the efficacy of the vaccine. So the progression of the disease. So if we naturally will go for people, those who are not infected at all, because still we need to know the immunity after infection. Probably they are protected, those who are already infected. So we'll not go to give the vaccine to those people, those who are already suffered from corona. Okay. So that people will be excluded probably in this first phase, because they are less likely to have the infection to reinfection, because it's not 100%. So we don't know that how much this immunity developed in a person is going to last. So it is a new disease. We're going to learn that this antibody developed against the virus is going to neutralize in effective for 6 months or 1 year or 12. Still we need to know it. So therefore the antibody is developed. Now we expect that this probably antibody is protecting against the virus. So those people will be away from the vaccine program, and the other high risk group probably will be categorized. The government of India will decide. So there are many ways to, I think, expert group will decide. The first of all, I think with the high risk group will be targeted for the vaccine, because we have a densely populated country, more than 3 billion vaccine to be available in a quick short of time in a knee-jerk fashion. It is not possible. So it has to be fair wise to cover all the population. और हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल की बात है, और जिस तरह से जल्दी इसके आने की उम्मीद है, और सरकार ने भी कहा है 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जनवरी से जुलाई के बीच में ये जो टाइम पीरियड है ये हो सकता है। तो जिस तरह से लगातार हम कोविड पर नियंत्रण के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से बहुत हद तक नियंत्रण में भी किया गया है, लेकिन जो केसेस हैं उसकी रफ्तार जो है उसको नियंत्रण करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वैक्सीन का ट्रायल है और वैक्सीन के आने की खबर है, कितनी संतुष्टि वाली है, और किस तरह से आपको लगता है कि आगे ये नियंत्रण में और ज़्यादा कारगर हो पाएगी? देखिए, जैसे अभी आपको बताया गया कि वैक्सीन आने की उम्मीद है, और वैक्सीन पहले टारगेट ग्रुप्स को दी जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति जिनको हमें लगता है विशेषकर इस कोविड से नुकसान हो सकता है, या जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या जो व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं, उनको इस वैक्सीन को सबसे पहले सुविधा दी जाएगी। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि वैक्सीन उन लोगों को दी जानी चाहिए जो पहले से इन्फेक्शन जिनको नहीं हुआ है, या जिनमें एंटीबॉडी डेवलपमेंट नहीं है, उनमें इस प्रकार का इस पर क्या प्रभाव रहेगा, ये भी जानने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये बात आवश्यक है, वो ये हमारे लिए काफ़ी समय से इस बात की उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि जैसे वैक्सीन आ जाएगी तो हम पुनः अपनी जो जीविका अर्न करने की बात जहाँ तक चल रही है, या इकोनॉमिक डाउन जो हमारा हुआ है या सेटबैक हुए हैं, उससे हम तुरंत उभर पाएंगे, कर पाएंगे, और आगे हम बढ़ पाएंगे। तो इन सब के चलते ये लोगों को उम्मीद जरूर बंधी है, लेकिन किंतु फिर भी मुझे लगता है कि वैक्सीन जब तक मुहैया होगी, उपलब्ध होगी, तब तक हमको अपनी प्रिकॉशंस नहीं छोड़नी होंगी, और हमारा जो बचाव है वो केवल हमारी जो प्रिकॉशंस है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग से मुख्य है, साथ में हाथ धोना और मास्क लगाना, वो बहुत ही आवश्यक है। उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन पूरे इंडिया में लगाने में जो समय लगेगा वो हो सकता है कि उस बीच में कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, तो हमको अपनी प्रिकॉशन किसी प्रकार से इसको नहीं छोड़नी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन ये भी जरूरी है यहाँ पे समझना कि अभी के जो पहले 2 ट्रायल्स हैं
अगर थोड़ा सा उनके बारे में भी आप हमें जानकारी दें कि पहले जो 2 ट्रायल्स है वो किस तरीके के उन ट्रायल्स पे कैसा असेसमेंट रहा है, हाउ हैज इट रियली पैन्ड आउट एज वी लुक फॉरवर्ड टू थर्ड फेज ऑफ ट्रायल? See, basically the trial which has been conducted has the primary aim to know, one, that on a minor number whether is going to be having any beneficial effect or not, and primarily whether is going to cause harm or not. And when we move to the trial from the one phase to the other phase, or when we go to the larger group of the number of people which we are awaiting results, then only we can say whether any significant adverse effect has been noted or not noted. Of course, the efficacy of the vaccine will be judged whether more than 50% recipients are able to develop sufficient antibody titer which can prevent the infection from harming our body or causing any effect on our body. Therefore, this will be told only once the level or the phase 3 trial is over, and the result of the phase trial will show us that, number one, there are no effects, minor rather that's called side effects or adverse consequences of this vaccination, which is of primary importance, and number two, that it produces a significant titer in the body to cause any significant benefit to us. बिल्कुल, और वैक्सीन से संबंधित प्रश्न भी हमारे साथ फेसबुक पर कुछ लोग जुड़े हैं, फेसबुक लाइव से उनके आ रहे हैं। और ऐसे ही नीलेश प्रकाश ने पूछा है कि जिस तरह से बात हो रही है कि पहले जो टारगेट ग्रुप्स हैं उन पर उनको वैक्सीन दी जाएगी, वो कहते हैं कि क्या जो लोग पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, क्या उनको भी वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी? बेसिकली जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं वो वैक्सीन से संबंधित ये हैं कि किस तरह से वैक्सीन दी जाएगी, कौन से अगर टारगेट ग्रुप्स हैं तो कौन किस ग्रुप के अंदर आएगा और उनका वैक्सीन का नंबर कम आएगा, और सबसे पहले ये चीज भी निर्धारित करने की है कि ये वैक्सीन कितनी असरकारक हो, कि किस तरह से ये काम करेगी। डॉक्टर बिस्वास, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें एक तो देखना होगा कि जो व्यक्ति ऑलरेडी इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके हैं और उनको वैक्सीन देने से कितना असर करेगा, क्या है। तो वैक्सीन प्रोबेबली सबको ही लेना पड़ेगा, सबको ही देना होगा, क्योंकि वैक्सीन का जो एंटीबॉडी है, हमें नहीं पता इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी कितना दिन तक, कितना महीने तक वो काम करेगी। तो अगर है हाई लेवल एंटीबॉडी है तो डेफिनेटली वो वैक्सीन के अगेंस्ट या कोरोना के अगेंस्ट काम करेगी। तो इसमें स्टार्टिंग में देखा गया है कि री इन्फेक्शन से हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि इन्फेक्शन अगर कोरोना इन्फेक्टेड अगर पर्सन एक बार हो चुका है तो उसको पूरा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है कि कभी कोरोना नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। 20%, 30%, कभी 15%, ऐसे डिफरेंट कंट्री में ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स मिले हैं कि दे आर आल्सो इन्फेक्टेड। बट क्वेश्चन इज अगेन कि प्रिवेंट इन्फेक्शन और प्रिवेंट सिवियरिटी, ये भी हमें देखना है कि इसमें स्टार्टिंग में भी दिखा गया है कि this vaccine also preventive severity and mortality, preventing mortality. So उन व्यक्ति को फिर जो already infected है उनको देंगे तो probably it will prevent severity, mortality, but maybe it will be considered that second or third phase में ऐसा कुछ होगा। But if it is available in the market, so anybody can buy. We don't know how the vaccine will be marketed, whether it will be under control, the government policy will be there, yes, or it will be available in the market. So anybody can choose, anybody can go and buy and have this vaccine shot. Yes. So whether we have a control or not, that's the next question. But if everybody is affected and we don't know who is going to be affected, but because this is a pandemic and everybody is under risk, so everybody will be trying to get the vaccine to save their life. So still we have to see where people who are infected really of what the government policy is and individual policy how is going to behave. So we have to wait for the final जो गवर्नमेंट अभी कैसे इसको रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट कैसे इसको अवेलेबिलिटी कराती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल, उससे पहले भी तमाम सवाल जो हैं वो दर्शकों के आ रहे हैं। ऐसे ही विवेक सिंह हांडा है, उन्होंने सवाल पूछा है कि
Anybody who has tonsillitis, is he at risk? क्या उसको रिस्क है और कितना रिस्क है? इस तरह से काफ़ी सवाल आते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से सर्दी का मौसम है या फिर पॉल्यूशन की वजह से इस समय पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो गले में खराश की दिक्कत आती है, या फिर जो सीजनल बुखार है या अलग अलग तरह के इन्फेक्शन वो आते हैं, तो उनको कितना खतरा बढ़ जाता है? डॉक्टर गुप्ता। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसमें जैसे जैसे सीजन भी आ रहा है ठंड का, जिसमें अक्सर इन्फ्लुएंजा लाइक या इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स होते हैं, एचवन इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। चूँकि क्लोजनेस होती है तो स्प्रेड इन्फेक्शन का भी बढ़ जाता है। ऊपर से ये फेस्टिवल सीजन, मैरिज सीजन भी आ गया है, तो उसमें क्लोजनेस, सोशलाइजिंग की चांसेस बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन के, संक्रमण के बढ़ने के खतरे भी बढ़ रहे हैं। और तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन भी इसमें रहेगा, जो खुद भी जो है अपने बूते पर काफ़ी हद तक शरीर पर प्रभाव डालता है, जिसमें से कि आपके जो नाक कान गला है उस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, जिसमें अक्सर लोगों को खांसी होती है, या जो पहले से जो बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि दमा या सीओपीडी के जो पेशेंट हैं, या कैंसर के हैं, आईपीएफ के हैं, फाइब्रोसिस वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर ही इस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी खांसी बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे लिए चैलेंज ये बढ़ जाता है ये जानना, क्या ये कोविड है, क्या ये नॉन कोविड है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत ही एक मुश्किल कार्य हो जाएगा। क्या हम हर व्यक्ति, आने वाले व्यक्ति जिसका भी हमको अगर जुकाम खांसी लेकर के आता है, क्या हमें सबको टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी? और अगर हमें टेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर टेस्ट का लोड कितना बढ़ जाएगा? तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या होगा। अब मेरा ये मानना है कि जो विंटर के इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होते हैं वो अक्सर बिना फीवर के होते हैं। उसमें अक्सर जैसे एलर्जी की संभावना आजकल जो सितंबर, अक्टूबर या फरवरी, मार्च में लोगों को जो एलर्जी की टेंडेंसी होती है, उसमें पैरोक्सिज्म ऑफ छींकें आती हैं, मतलब लगातार बहुत सारी छींकें आती हैं, एक नाक से पतला सा पानी बहता है, उसके बाद गले में खराश हो जाती है। तो जिनको इस प्रकार के सिम्टम है उसको हम मान सकते हैं कि वो एलर्जी राइनाइटिस है, स्पेशली अगर उनकी पुरानी हिस्ट्री है। तो वो उन व्यक्तियों को ये बताया जा सकता है, जैसे आपने पूछा कि टॉन्सिलाइटिस है, तो इसका मतलब यह है कि अगर उनको एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस की संभावना रहती है, जल्दी जल्दी होता है, साइनसाइटिस जल्दी जल्दी होती है, तो अगर उनको पुनः फिर से होती है तो चांसेस ये हैं कि वो सीजनल है, ना कि कोविड है, नंबर 1। नंबर 2, अगर साथ में फीवर और ड्राई कफ और साथ में अगर टायर्डनेस, वीकनेस, एग्जॉशन या एनोस्मिया, जूस्मिया जिसको कहते हैं, यानी कि सांस में नाक में जो गंध की आने की जो आप कहते हैं एनोस्मिया कहते हैं, यानी कि आपको दुर्गंध आना बंद हो जाता है या टेस्ट बदल जाता है, अगर इस प्रकार के सिम्टम आते हैं तो हम ये मानेंगे कि उनको कोविड की संभावना ज़्यादा है। और जो पोल्यूशन से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति, उनको पहले से अगर सांस की तकलीफ रहती है तो उनकी बीमारी एक्सपोजर से बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये आवश्यक है, नंबर 1, पहले तो अपने आप को ठंड और गर्म की जो ये रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उससे बचाव की आवश्यकता है, अपने आप को प्रिकॉशन लें जी। दूसरा ये है कि अपने आप को पोल्यूशन से बचा के रखें, और फिर अगर उसके बाद भी अगर फीवर के साथ में सिम्टम आते हैं, एक्यूट होते हैं, और अगर ऐसी हिस्ट्री है कि किसी और व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ है, तो कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। Yes, this is a very common question. In fact, I want to take it to Dr. Biswas also very quickly. I'm sure you're coming across such cases on daily basis. This change of weather. Most of us are experiencing a certain discomfort here in throat or mild body temperature, and because of the COVID, well, we haven't experienced this before, when a mild temperature would really scare you. But doctor, you know now it really scares you. Mild temperature, oh my God, could this be COVID? How do you really simplify this? How do you really differentiate that no, this could be a viral because of the pollution or perhaps change in weather, and this has got nothing to do with COVID? Because a lot of it is psychological also, Dr. Biswas, you would agree. Yeah, this is very important questions, is very also relevant, because most of the people know at this time the winter is coming, so there are flu-like symptoms. Many people will be affected by the flu. So common symptoms that we need to know, that nasal running, so nasal stiffness, so nasal symptoms that also associated with COVID, fever, high grade or low grade fever. There are many similar symptoms really confusing the people whether this is acute febrile illness or influenza related other illness. So acute febrile illness at this time we are getting so many like dengue, chikungunya, malaria, leptospira, typhoid and scrub typhus. These are the 5-6 common acute febrile illnesses. The diseases are associated with this season. Now,
winter also coming, so influenza. So we have to, little bit be careful, because we are not sure. People may not be able to distinguish what disease. So corona disease symptoms are, as we know, the mild to moderate grade fever. They are not very high grade fever like other disease. So if you are, there are few cases high grade fever to begin with, but they are not. And there may be sore throat or headache. These are also other, and there may be GI symptoms. And mostly, if it advances a little bit more, cough and breathlessness are the most important symptoms. So these are the few that symptoms, if we think probably these are corona. And we don't see much majority of running nose in this corona. We initially thought probably these are like this. So if somebody is having running nose, and these are mostly not corona, and there are maybe few to begin with, but majority we can think this is influenza like other common cold and all. So these are common now illnesses that we think. And other respiratory illnesses like pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, that Yes. Dr. Gupta highlighted, that these are also, this is the season to have. And lot of people eating habit, cold, maybe sensitive somebody after drinking a cold fridge water, then ice cream, these are all also causing throat irritation, maybe mild fever. So those are not really associated with the nothing to do with the corona. So we have to, we should not be very worried about if there is any acute. But definitely, if 1 or 2 days the symptoms increases, they should immediately go to doctor and take help of physician to go further how it should be investigated. बिल्कुल, जिस तरह से इस बीमारी के नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से रिकवरी रेट आया है, तो चिंता की बहुत बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो आम आदमी है सिम्टम्स को देखकर आजकल थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ी सी चिंता हो जाती है। और उसी में ही जिस तरह से आपने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि जो शुरुआती सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन होते हैं और कोविड के सिम्टम्स अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग भी सामने आए हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह हो जाती है। तो इसमें कितना ज़रूरी होता है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो जो चेकअप है वो डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर कराएं, और कोविड का टेस्ट जो है वो भी कितना ज़रूरी हो जाता है? डॉक्टर गुप्ता। जैसे डॉक्टर विश्वास ने बताया कि पहले ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सारे बुखार या सारे तकलीफ़ें कोविड नहीं होंगी। कुछ जैसे जिनको पहले से सांस की तकलीफ़ है, दमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, या जो IPF के पेशेंट्स हैं, उनके अपने जो ऑनगोइंग सिम्टम्स हैं वो मेंटेन रहते हैं, तो उनको उसकी दवाई चलती रहनी चाहिए। हाँ, उन सिम्टम्स के ऊपर जो भी नया चेंज आता है उसको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को बुखार के साथ में ड्राई कॉफ आ रहा है, साथ में टायर्डनेस, वीकनेस हो रहा है, या उनके सूंघने की क्षमता बदल गई है, टेस्ट चेंज हो गया है, अनड्यू एग्जॉशन चल रहा है, ऐसी स्थिति में पॉसिबल है कि वो कोविड हो और उसकी जांच करानी चाहिए। किंतु जैसे आदमी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही इस मौसम में ठंड के महीने में थोड़ा उतार चढ़ाव आएंगे। आपको हो सकता है कि थोड़ा सी खांसी हो जाए जो मौसम बदलने के अनुसार होती है, हो सकता है कि रनिंग नोज हो जो एलर्जी के सिम्टम होते हैं, स्पेशली जैसे आपने पुराने वुलन्स निकालेंगे, घर की सफाई करेंगे, धूल मिट्टी से संपर्क होगा, उसमें आपको अचानक बहुत सारी छींकें आ जाएंगी। छींकों के बाद में पतला सा नाक से पानी बहता है, उसके बाद में नाक स्टफी हो जाती है, उसके बाद गले में खराश पैदा हो जाती है, और हो सकता है कि साथ में खांसी हो, और जिनको सांस की तकलीफ होती है उनमें सांस में वीजिंग की साउंड आती है। ये टिपिकल एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकियल एज़मा के सिम्टम्स होते हैं, कोविड के सिम्टम नहीं होते हैं। ऐसे में तुरंत अपनी जो पहले से दवाई चल रही है तो वो लें, या फिर डॉक्टर से संपर्क करके कराएं। इसमें डरने की बात नहीं है कि आपको कोविड होगा। कोविड के सिम्टम जो है वो जैसे हल्का बुखार है और साथ में सूखी खांसी है, सूंघने की क्षमता इसे बदल जाती है, या पेट में दर्द हो सकता है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन टायर्डनेस, फटीग, ड्राई कॉफ एंड माइल्ड फीवर, ये यूजुअल सिम्टम होते हैं जो कि वार्निंग सिग्नल की तरह काम करने चाहिए, जो जांच के लिए हमें जाना चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको सपोज तेज़ बुखार, ठंड लग के बुखार होता है, तेज़ खांसी होती है, या आपको साथ में खांसी के साथ में सांस फूलने लगती है, बलगम आता है और बलगम में हो सकता है कि खून भी आने लगे,
या लाल बलगम आने लगे, तो ये निमोनिया की शिकायत की वजह से होता है। Right, तो Dr. इसके Gupta. लिए तुरंत आपको जांच करानी चाहिए। Okay, I'm going to quickly ask Dr. Biswas, 20 seconds, your quick fire message, important do's at this time of the year, and don'ts, of course. Yes, that we have been trying for last 1 year, and those so most important thing that without forgetting that use of mask is the lifeline, and social distancing, and then we should also know how to do the respiratory hygiene. So most important. So we have to adopt that. Respiratory hygiene means washing our throat, cleaning our throat and nose. That has to be adopted. And how we should do, we have to learn that. And I just I can say that only that we soon probably will be get rid of coronavirus with the vaccine, and wait for the day. And till then, we should follow strictly the social distancing, use of mask, and hand hygiene along with respiratory hygiene. बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सचेत होने की ज़रूरत है। और किस किस तरह से जो है प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ में डिफरेंस किया जा सकता है कि कोविड है या नहीं, और किस तरह से डॉक्टर के पास जाया जा सकता है, टेस्टिंग कितना ज़रूरी है। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर बिस्वास, आपका हमारे साथ यहाँ पर शामिल होने और इन जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And with that, it's also time up on this edition of Mask Up India and Doctors Speak, because Mask Up India is DD News' and DD India's campaign. And thank you very much, viewers, for your humongous support. Remember, we've been telling here, constantly reminding you all that frequent hand washing, social distancing and masking up is the three-pronged approach which will keep you and your loved ones safe. बिल्कुल, अगर कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है, तो मास्क ज़रूर लगाए रखें और बेहद सिंपल मास्क सही तरीके से लगाएं। और आप भी हमारी तरह मास्क लगाएंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।